Okay, so this is the time to start the second session, and the second session is the demonstration and practice on yoga as well as meditation, which is taken by Miss Khushbu Vishwakarma and Mrs. Jyoti Manglani. The chairperson of this session is Dr. Swati Deshmukh. Dr. Swati Deshmukh is working as an associate professor and HOD in CAYMET, Siddhant College of Pharmacy, Pune. Madam has pursued the Master of Pharmacy in 2006 from Barkatullah University, Bhopal, and PhD degree in 2050 from Jaipur National University, Rajasthan. She is having 17 years of the experience, including 3 years of the industrial experience and 14 years of the academic experience. Her research area belongs to phytochemistry, herbal formulation, nanotechnology, and genomic studies. She has published 20 national and international research papers and authored 3 national books. She has filed 5 Indian patents. She worked as a reviewer in the Elsevier and MIT International Journal of the Pharmaceutical Science. She is certified FDA approved analytical chemist and honored as a chairperson, chief guest, evaluator in the conference and resource person in various seminar series. She has awarded for excellent contribution in the field of pharmaceutical research and education at March 21 by IPC Health and Wellness Conclave, as well as she is also having the World Book of Records in CPM, Sri Lanka. Madam has recently awarded by Bharat Varsh Golden Griffon Award 2021 in the category of the Young Scientist Award by Prudence Pharmaceutical Private Limited. She is awarded by Best Poster in various national poster presentation. She organized various workshops, seminars, webinars, and value-added courses, and total number is 18. She also fetched the grant of 1.4 lakhs, and she is an entrepreneur of the Green Touch Health and Cosmetics. So now I request Dr. Swati Madam to proceed further. Audible, sir? Yes, Madam. Please. Thank you so much, sir, for introduction. I am very grateful to the Pune College of Pharmacy for giving me an opportunity to chair the session. It's my immense pleasure to introduce our today's speakers. We have with us Ms. Khushbu Vishwakarma Madam and Mrs. Jyoti Manglani Madam. Ms. Khushbu Vishwakarma Madam, first of all, I introduce Ms. Khushbu Vishwakarma Madam. Madam has completed yoga from Atal Bihari University. She is a trainer and yoga demonstrator in Mrityunjay Yoga Kendra, Bhopal. She has 20 years of experience, teaching experience of practicing yoga in various institutes and Mrityunjay Yoga Kendra, Bhopal. She has organized various summer camps, therapeutic camps, and also conducted regular weekly classes at Yoga Kendra. She also worked with various prestigious institutions like Delhi Public School, Kendriya Vidyalaya, Sagar Public School, and as a yoga teacher since 2009. Presently, Madam is working with St. Xavier's Senior Secondary School, BHL Bhopal. Thank you, Madam. Welcome to the session. Thank you, Now ma'am. our second guest speaker, Mrs. Jyoti Manglani Madam. She is a trainer in yoga and aerobics and contributing towards creating awareness among
everyone about his old Indian traditional and helps in transforming body and mind and promoting well-being of the society. She has more than 15 years of experience and more than in practicing yoga and more than 7 years of experience teaching yoga and aerobics to the students for all age groups. Madam has done diploma in yoga and Prakritik Chikitsa Neuropathy from ABVP Bhopal. She also completed short-term yoga course from Mumbai in 1990. She has been learning and teaching yoga at Patanjali Yoga Kendra Bhopal since 2004 to 2007 and also at Mrityunjay Yoga Kendra since 2007 to 2011. Currently, she is teaching and successfully running her yoga institute and careful and creative classes at Bhopal, Madhya Pradesh, named Inspired Class and Creative Center since 2011 onwards. With this brief introduction, I would like to invite our today's guest speaker, Khushbu Madam and Jyoti Madam, on the demonstration and practice session on yoga and meditation. So I welcome you, Madam, to please proceed the session. Welcome, Khushbu Madam and Pooja Madam. Thank you, ma'am, Swati ma'am, and Hemant sir. This is a great opportunity for us. योगा के बारे में आज आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना है एंड आगे भी जितना भी आप सभी की रिक्वायरमेंट रही है या हम सबकी रिक्वायरमेंट रही है उसके बेस पे कैरी ऑन करते हैं. टाइमिंग दिया है अराउंड 12 o'clock. मैं आई क्लियर स्वाति मैम? आई थिंक टाइमिंग 12 o'clock तक है. Yes, ma'am. 12 p.m. Okay. Thank you. Even you can continue if you may take some more time if required. It's okay. We carry on. चलिए start करते हैं. Good morning. This is the practice session for yoga. Firstly, we have to know what is yoga. Yoga, in generally, everyone knows about this. Yoga means some asanas, pranayam, relaxation, and many more. Like meditation का part हम बहुत सारे चीजें जानते हैं. But in this situation, this pandemic situation, what is the main yoga and what is the main process for yoga? ये हम आज जानने की कोशिश करेंगे. Firstly, what you mean by yoga? तो thoroughly हम अगर basically पीछे जाएं थोड़ा एक history के ऊपर, तो योगा की अगर हम definition लेने के लिए जाएं तो there is certain definition given by our Mahatma Sant, that is yoga is a way which is good for healthy mind and body. अब इस सिचुएशन को समझने की बात आई तो हम कंक्लूड करेंगे इस चीज को. योगा का एक प्रस्ताव दिया हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, जिसको वर्ल्ड की मैक्सिमम कंट्रीज ने एक्सेप्ट किया. कारण क्या था? योग का अर्थ है जोड़ना. तो यदि हम जोड़ने की बात करें, प्लस माइनस की बात करें, तो प्लस इन द सेंस मेंटल एंड हेल्दी बैलेंस. अगर इसकी बात करें तो जिस चीज को हमारे पूरे वर्ल्ड ने अडॉप्ट किया है उसको हम क्यों नहीं. तो एक जोड़ने की बात आई योगा की. तो योग मतलब जोड़ना, मन को तन से और तन को मन से. अब मन में एक क्वेश्चन आता है, आप कैसे बोल सकते हैं कि हम मन और तन से नहीं जुड़े हुए हैं? तो इसमें एक बेसिक क्वेश्चन आता है कि क्या क्यों नहीं इस पैंडेमिक में योग क्यों महत्वपूर्ण है? हम सबको पता है कोरोना आया और उसने हमें बिल्कुल उसको हमको 360 डिग्री घुमा दिया. कैसे घुमा दिया? हम कंक्लूड करते हैं इस बात को, कंटिन्यूअसली वी ऑल आर वर्किंग फॉर अवर सोसाइटी बट फर्स्टली फॉर अवर फैमिली. अपने बच्चों के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए वर्क करते हैं और कुछ ना कुछ अर्न करते हैं. अर्न क्यों करते हैं? एक अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी सोसाइटी, एक फैमिली होना चाहिए. इस पैंडेमिक ने हमें बताया कि वो फैमिली
और वो घर जिसको हम बहुत महत्वपूर्ण तरीके से मिलकर जुलकर लोन लेकर फाइनेंशियल कंडीशंस को फेस करके हम आते हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली क्या हुआ, इन 2 से 3 सालों में वही घर हमारे लिए डिप्रेशन का सहारा बन गया, हमें वहां से निकलना पड़ा, या हमारा मेंटल बैलेंस हम क्यों नहीं ले पाए, क्योंकि हम घर में हैं कंटिन्यूअसली, हम बाहर नहीं जा पाए, हमारी सोशल लाइफ खत्म हो चुकी है। हमने किस चीज का सहारा लिया, मोबाइल का सहारा लिया, नेट का सहारा लिया, जो कि कहीं ना कहीं हमारे लिए और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो गया। तो ड्यू टू पैंडेमिक या ड्यू टू कोरोना हमें ये बताया गया कि हम जितना बाहर जाते हैं उतना ही हमें अपने अंदर भी देखना है। We have to see inner part of our body, inner part of our mind, inner part of our family and way. ये हमें इस पैंडेमिक ने सिखाया। तो योग इस चीज में हमारा कैसा साथ देगा, आज हम वो समझने आए हैं। सबको पता है पातंजलि योग, अष्टांग योग के नाम से हम इसको जानते हैं। पातंजलि योग, अष्टांग योग मीन्स, जैसे हम इन पर्टिकुलर वे में बात करें, एक लेक्चरर तक की जर्नी अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमने स्टार्ट, हमेशा हर व्यक्ति स्टार्ट करता है विद केजी। वी ऑल हैव टू गो इन सर्टन वे फॉर इन दिस प्रॉपर जर्नी। तो उसके लिए क्या करना है, आपको केजी पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आप लेक्चरर बन जाएं, चाहे डॉक्टर बन जाएं, और चाहे आप एक हाउसवाइफ या कुछ भी बन जाएं, आपको एक सर्टन वे फॉलो करना पड़ेगा। वही काम योगा में भी होता है। वी हैव टू फुलफिल दैट पर्टिकुलर स्टेप्स एंड देन वी हैव टू गो फॉर द अपर स्टेप, दैट इज कॉल्ड आसना, ध्यान, मुद्रास एंड मेंटल बैलेंस। तो अष्टांग योग, योग की बात करें तो देयर इज सर्टन वे, सर्टन स्टेप्स, दैट इज कॉल्ड अष्टांग योग। What is the Ashtanga Yoga? What is the 8 steps? There is first one, yam, niyam, asana, pranayam, pratyahar, dharana, dhyan and samadhi. These are the 8 steps of Ashtanga Yoga. अब अगर हम यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इन सारे स्टेप्स की बात करें तो इन जनरल पर्सन, दोज हु आर not knowing what is yoga, what is ashtanga yoga, what is yam niyam, so that yoga is not beneficial for them. No, that is the good thing for any part of society, any part of our family and culture. So क्या है ये अष्टांग योग और हम इसमें अपने लिए कैसे इसको अपने लिए बेनिफिशियल बना सकते हैं? सिंपल बात करती हूँ, एक हमारे जितने भी आज के गेस्ट ऑफ ऑनर्स रहे हैं या लास्ट सेशंस के जितने भी लास्ट सेशंस हुए हैं, गेस्ट ऑफ ऑनर्स रहे हैं, सभी को पता है कि हम एक इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, दैट इज फार्मास्यूटिकल। इस इंडस्ट्री में आप सभी जानते हैं कि हमें अगर एक भी टैबलेट या एक भी इनोवेशन आगे लेके जाना है, रिसर्च आगे लेके जाना है, तो हमें थॉरली उसको इम्प्रूव करना पड़ता है, हमें उसको किसी ना किसी के ऊपर इम्प्रूव अमेंडमेंट करके हमें दिखाना पड़ता है कि या दिस इज द यूजफुल फॉर योर बॉडी, पैरासिटामोल इज गुड फॉर फीवर, बट व्हाई, कैसे आपने उसको बोला, देयर इज सर्टन रिसर्च बिहाइंड दैट। हमने उसको बच्चों का सब करवाया, तब हमें पता चला ओवरऑल कि दिस इज द गुड फॉर आवर फीवर कंट्रोलिंग प्रोसेस। वैसे ही योगा इज गुड फॉर एवरीवन, हाउ इट रिकॉग्नाइजेस, बिकॉज हमारे जितने भी महात्मा संत रहे हैं जिन्होंने हमें ये योग के नाम की विधा दी है, उन्होंने ये ऑलरेडी अपने ऊपर रिसर्च करके दिया। इसलिए आज हम इतना थॉरली इम्प्रूवमेंट के साथ बोल पाते हैं कि दिस इज द गुड वे ऑफ मेंटल एंड फिजिकल बैलेंस। इन दिस वे, फॉर दिस वे और विद दिस वे वी हैव टू एडजस्ट अवर माइंड एंड बैलेंस थॉरली एंड बैलेंसिंग। ये हमारा प्रॉपर वे है, इसी को हम कहते हैं योग। तो जब ये सर्टिफाइड योगा है, सर्टिफिकेशन के साथ हमारे पास आया है, तो उसके लिए फिर हमें कुछ भी जजमेंट देने की जरूरत नहीं कि ये ऐसे कैसे हो गया या ऐसे क्यों हो गया। शुरू करते हैं।
आज के पूरे योगा का वे, जिसमें प्रैक्टिस सेशन का नाम हमने उसको दिया है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हर इंसान परफेक्ट बनता है। और हम सब ने सुना है प्रैक्टिस मेक अ परफेक्ट मैन। तो ये चीज को हम आगे थरली स्टार्ट करते हैं विथ यमा, नियमा, आसना, प्राणायाम, रिलैक्स, प्रत्याहार, धारणा एंड ध्यान, समाधि। तो हम इतने सारे वेज में कंक्लूड करते हैं अपने योग को, आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन एंड सम neti part presentation. Neti part presentation in the sense, some cleaning process also are here, which is very useful for our internal organs. हमें एक टैबलेट मिलती है जिसको हम खाते हैं, जिससे हमारा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है, या हमारा लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन क्लीनिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन in that situation that passed since 200, 300 ago, there is no tablet, there is no syrup for this whole cleaning process. So what they all are doing in that particular part, they all having cleaning process, natural process. तो वो आज हम समझेंगे। एक ब्रीफिंग देती हूँ अपने इस सेशन की। हम फर्स्टली सम आसनास करेंगे, डेमोन्स्ट्रेशन के साथ आप भी कर सकते हैं, मैं करवाऊंगी भी। सम आसनास इज देयर, देन आसनों के भी वे हैं, स्टेप्स हैं। Firstly, we have to go earlier stages asana, then middle part of stages asanas, then higher stage of asanas. We all are going for the practice session, and we all are going for in future for the subjective session also. When we are going to do a lecture, when we are going to do some students performance, this is the basic part of our yoga. There is middle one part asanas, there is lower one part asana, sorry, then middle part of asanas, then higher part of asanas. Then we have to go for the pranayam also. Then after we have to go for the relaxation, and afterwards we have to go for the cleaning process that is called Jal Neti. This is very good for this pandemic season that is called COVID also. No? COVID is the disease which is coming from these and these parts. That's why we all are wearing masks for this process. So this Jal Neti part is the very beneficial for these parts, eyes, nose, ear, and this whole part. तो वो आगे हम चल के समझेंगे। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ आज का पार्ट। तो आज का क्लास की स्टार्टिंग होगी विथ ओम चैंटिंग। ओम चैंटिंग के लिए आपको किस तरह से बैठना है, मैं ज्योति मैम की तरफ कैमरा कर रही हूँ, वो आपको दिखा रही हैं कि आपको इस तरह से बैठना है। मैं आपको इंट्रोड्यूस करती जाती हूँ, इंस्ट्रक्शंस देती जाती हूँ। प्लीज ट्राई टू फॉलो दिस वे फॉर द स्टार्टिंग ऑफ अवर क्लास। Whole back should be straight now. Both arms, both palms in Gyan or Chinna mudras, and your back should be straight. You have to sit in any chair. You can sit in any bed, and you can sit in any floor also. इसमें आप बिल्कुल भी परेशान नहीं हो कि मुझे मेरे पास फ्लोर नहीं है, मैं कैसे करूं, whatever. But you have to try to do this part. This is the basic step of yoga. We always start yoga with Om chanting. Why? What is the reason behind Om chanting? Om chanting is the process which is generated alpha, beta, gamma waves to balancing our mind. So in this situation where our back is straight, eyes is closed, arms is in Chin Mudra or Gyan Mudra, and body is in statue posture. स्टैचू का वर्ड जब हम सुनते हैं तो हमारे मन में तुरंत आता है वी नॉट सपोज टू मूव अवर बॉडी, वी हैव टू सिट लाइक अ स्टैचू, सो देयर इज नो मूवमेंट एट ऑल. नाउ वी हैव टू डू ओम चैंटिंग.
ओम चैंटिंग के लिए आपको आपके बॉडी में, आपके लंग्स में ब्रीथ इन करनी है. We have to take breathe and then we have to take out that breathe with O, and Ma words. These three words generated alpha, beta, and gamma waves for our brain. So we will start now. We have to breathe, take breathe firstly. Again, breathe in. Last time, again, breathe in. Now in this time, try to recognize that wave which is generated by you only. Alpha, beta, gamma in your brain. Just thoroughly check out your backbone. Just thoroughly check out your body. Is this fixed or not? Just think about your whole session. इस ब्रीफिंग के साथ कि हमें आगे और क्या करना है, तैयार कीजिए अपने माइंड और बॉडी को. Now rub your palms, everyone. Rub, 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 rub. Keep on your eyes. Keep both the palms on your eyes. Transfer this heat on your eyes, on your forehead. Now relax your arms. Open your eyes. Open your asana also. अब नेक्स्ट वन आसन की तरफ चलते हैं. तो जिस तरह से मैंने आपको डिस्क्राइब करा, वी हैव टू फॉलो सर्टेन स्टेप्स फॉर दिस आसनास. वी हैव फर्स्टली गो फॉर द फर्स्ट स्टेज आसनास, दैट इज कॉल्ड सूक्ष्म व्यायाम. आप सभी ने देखा होगा जब हम इंटरनेशनल डे योगा में जाते हैं या उनका प्रोटोकॉल थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, तो देयर इज स्टार्टिंग विद सूक्ष्म व्यायाम ऑल्सो. So Sushma Vyayam we have to do for the primary stages asanas. So we all have to do firstly primary stages asanas. So what we have to do? Firstly, hand movements. Hand movements means आपकी बॉडी के सबसे पहले हाथ के joints की बात करें तो that is finger joints. So we have to close our fingers like this, then open, again close, open, again close, open, again close. अब इस closing process में महसूस कीजिए कि in your fingers there is a piece of lemon and you have to उसको अच्छी तरह से स्क्वेज करना ताकि पूरा रस नीचे निकल आए. मतलब इतना तेजी से आपको बंद करना है. नाउ ओपन, स्लोली ओपन. नाउ रोटेट इट. अब क्लोज है आपकी फिंगर्स, अब इसको रोटेट कीजिए. 1 2 3. नेक्स्ट जॉइंट है हमारा रिस्ट जॉइंट, उसी के लिए हम वर्क कर रहे हैं. 5 6 7. एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करना है साथ ही साथ. 1 2 3 4 5 6. हाथों को नीचे रखेंगे
क्योंकि इतने ही प्रोसेस में हमारे शोल्डर्स या कहीं ना कहीं हमारे आर्म्स में पेन होता है। ये जनरल प्रोसेस है, जनरल प्रॉब्लम है इन जनरल पर्सन की। तो अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट जॉइंट इन अवर हैंड, दैट इज फिंगर जॉइंट, वी डन। नाउ next joint also done, that is the wrist joint. Now we have to go for the next joint, that is ankle joint, elbow joint. Now we have to raise our arm in front of your body. Now slowly bend your arms and try to touch your hand fingers to your shoulders. Slowly open your arms, open. ये इतना लंबा क्लोज और ओपन बोलने का कारण है कि आप इतना स्लोली करें ताकि आपको इसका पूरा प्रॉफिट मिल पाए। नाउ अगेन क्लोज, ट्राई टू टच योर फिंगर्स टू योर शोल्डर्स एंड योर आर्म शुड बी रिलैक्स इन दिस पोजिशन। नाउ अगेन ओपन, वेरी गुड। फील दिस स्ट्रेचिंग, feel this pain, feel this relaxation. Again, last time, close and slowly open, slowly open. Good. This is the third exercise for our elbow. Now we have to go for the shoulder joint movement. We have to bend again our arms. Very good. Bend it slowly. Good. Now here is, try to touch your elbows. Now rotate it. One. Slowly you have to rotate. Every time try to touch your elbows when you finish your round. Two. Slowly try to maintain a circle. Three, four. Now you have to do anti-clockwise. One. Basically हम सभी को दिक्कत होती है frozen shoulders की, shoulders में pain की, when we have to write something and when we have to go for the lecture also. So this is the basic movement which is done by us anywhere, anytime. So we have to do this process for 4 times clockwise, 4 times anti-clockwise only. Now 4 times finish. Now relax. Relax your shoulders and now relax your arms also. Now relax. This is the basically joints movement. This is called, which is called सूक्ष्म व्यायाम। अब हाथों के ज्वाइंट्स हमने फिनिश कर दिए। नाउ वी हैव टू गो फॉर द लेग मूवमेंट्स। लेग मूवमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट ज्वाइंट शुरू होता है हमारे लेग्स के फिंगर्स पे। जो लोग चेयर्स पे बैठे हैं, नो इशू, आप अपने अगर शूज भी पहने हैं या कुछ भी स्लीपर्स भी होल्ड करे होंगे तो अपने फिंगर्स को आप क्लोज या ओपन कर सकते हैं इजीली। सो वी हैव टू गो फर्स्टली विथ अवर leg fingers. We have to close our leg fingers firstly. One, with movement, with two, open it slowly. Again, close your fingers. Try to feel that pressure. Open it, two, close it, one, open it, two, close it, one, open it, two. Like hands, there is second joint in our legs, that is ankle joint. So we have to move ankles now. We have to pressure it and pressure it. One, very good. At the back, two, पीछे की तरफ pressure से पीछे लाने की कोशिश कीजिए. One, again two, again two. Very good. अब इसे rotate करेंगे दोनों foots को एक साथ together. One, you have to rotate both the foots together. Two, very good. Three, just feel कीजिए इस stretching को. Five, हो सकता है आपके joints में से आवाज भी आए. That sound indicates you that your joint is not in good position. Anti-clockwise. One, try to take two,
full round and try to give full vibration in your foot joint. 3, Excuse me, Khushbu madam. I think your voice is not audible. yeah. Okay, now it is. Ma'am. Okay. So this is the process for your leg. Now, so slowly stop, 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 and stop. Now open your legs and relax your lower part of body, that is your legs. This is finish out our Sushma Vyayam part. Like your body having joints, and we have to go firstly for the joints movement. That is we already over. That is called Sushma Vyayam. This is very good for joints pain. That is good for gouts and gathia and arthritis patients. Those who having this kind of problem like arthritis, gathia, gouts, joints mein dard, whatever, they have to do this movements daily for the improving your problem, for the resolving your problem, and for the maintain proper lubrication in your joints. Now we have to go for the middle part of our asana session, that is called standing posture. So we have to do standing postures also. Firstly, we have to do Tadasana, Triyak Tadasana, Kati Chakrasana, and Ekpad Pranamasana. तो फर्स्टली हम चलेंगे ताड़ासन के लिए. आपको खड़े होना है, दोनों फुट्स के बीच में हल्का सा डिस्टेंस रखना है, आर्म्स को दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलॉक करना है और सिर के ऊपर रखना है. दिस इज द बेसिक इंस्ट्रक्शंस फॉर दिस आसन. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, यहाँ पर ब्रीद इन कीजिए और ब्रीद इन करते हुए ऊपर बॉडी को स्ट्रेच कीजिए. नाउ स्लोली स्ट्रेच अप and try to see your folded hand or interlocking fingers. Now slowly come down and try to keep both the palms on your head and relax. 2 times we have to do. Again, up, slowly stretch your arms properly and slowly down. सभी लोग कर सकते हैं इसको और करना भी चाहिए. सो प्लीज ट्राई टू डू. अगेन अप एंड स्लोली डाउन. Now relax your arms, close your eyes here. Just thoroughly listen about this process.
listen about this process. This is called Tadasana. Very beneficial for stretching your backbone, very beneficial for your shoulders, your arms. Means this is basically stretching posture for your whole body. In generally what we have to do, हम लोग हमेशा कंटिन्यूसली बैठे रहते हैं, वी ऑलवेज सिटिंग, और हम लोग कंटिन्यूसली खड़े रहते हैं. इन दोनों पोजीशन में ही हमारी बॉडी में ब्लड का फ्लो सिर्फ एक ही तरह से होता रहता है, और हमें चाहिए कि हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर पाए. तो whenever you want to tighten up with your back or with your arms, so you have to stretch your body like this. Okay, and now we have to go for the second one asana, that is called Triyak Tadasana. What we have to do, we have to slightly apart your legs. पैरों को थोड़ा फैलाना है शोल्डर के जितना. अब हाथों को इंटरलॉक करेंगे फिंगर्स को, और हाथों को बिल्कुल सीधा रखेंगे. We have to touch both the arms with your individual ears. Now, what we have to do, we have to turn towards your right side. One. इस position में your foot should be in relaxing posture. Again, straight. Now towards your left. पूरा साइड मसल्स को स्ट्रेच करना है. Now straight. Towards your right. अपनी दाहिनी ओर मुड़ना है आपको, पैर सीधे रखना है. Straight. Towards your left. इस पोजीशन में देखिए आपके फुट्स बिल्कुल रिलैक्स हैं, जमीन से टच हैं, और आपके पैर बिल्कुल सीधे हैं. अगेन स्ट्रेट, राइट, स्ट्रेट, लेफ्ट, straight. Now relax. This is called Triyak Tadasana, very beneficial for your side muscles, your side fat deposit burning process. और इसका एक बहुत बहुत बड़ा यूज है, वो मैं अभी आपको लास्ट में बताती हूँ. पहले आप ये तीनों आसन कर लीजिए. एक और आसन है, लास्ट वन इन दिस सर्टन पार्ट ओनली. आपके दोनों पैरों के बीच में लिटिल बिट डिस्टेंस रहेगा. आपको आपका राइट पाम आपके लेफ्ट शोल्डर पर रखना है, और लेफ्ट पाम को पीछे कमर पर लपेट के रखना है. अब क्या करना है, इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा. जिस शोल्डर पर आपने हाथ रखा है, आपको उसी की तरफ मुड़ना है, एंड अपोजिट लेग की हील को देखना है. ज्योति जी कर रही हैं, देखिए. 1, समझते जाइए और साथ में करते जाइए. वेरी गुड. Again, 2. When we have to go for the 2, we have to change our arms position also, and we have to twist our back also. Again, change. Whenever you change your part, you have to change firstly your arms, then you change your side, and you have to twist your back. Again, change. Just देखते जाइए और करते जाइए. In this position, you have to fix your foot. You're not supposed to move your foot. Now again, change. बॉडी को अच्छी तरह से स्ट्रेट रखिए ताकि आपकी अपर पार्ट ऑफ बॉडी में पूरी स्ट्रेचिंग हो सके. अगेन चेंज. यू हैव टू स्ट्रेट कीप योर बॉडी स्ट्रेट so you can properly do your stretching. Again, change. Slightly do this movement and try to do again, change. Again, change. Again, change. Now slowly come up and relax your arms and close your eyes. This is 3 asanas. Basically, when we go for the cleaning process for our large and small intestine, what we have to do in yoga,
we have to take little bit warm or salty water. If you have a BP problem, you're not supposed to take salt. You only take warm or little warm water. Okay. And rest of the person, those who having not BP problem, they can take salty and warm water. We have to take 2 glass warm water, and we have to do these three asanas. Firstly, Tadasana, Triyak Tadasana, and Kati Chakrasana, which is done by us only now only. इन तीनों आसन को करने से क्या होने वाला है? When we drink that 2 glass water, पानी यहाँ से गया. इन जनरली हम सबको पता है यहाँ से पानी जाता है और इन जनरली छानने का प्रोसेस शुरू हो जाता है बॉडी में और वो पानी चला जाता है हमारे यूरेथ्रा में कलेक्ट होकर और हम उसको यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हैं. लेकिन जब हमें हमारी बॉडी को क्लीनिंग प्रोसेस में लेके जाना है, हमें हमारे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन की क्लीनिंग करनी है, तो हमें एफर्ट करना पड़ता है हमारे एक वॉल्व को खोलने का, जो हमारे पानी को नीचे स्टमक में और ब्रोंकियास के थ्रू नीचे लार्ज और स्मॉल इंटेस्टाइन में ले जाने के लिए. तो ये प्रोसेस थ्रू हमने करा ताड़ासन. व्हेन वी स्ट्रेचिंग अप अवर बॉडी, वो पानी जाता है हमारे स्टमक पर शिफ्ट होता है. वहां हमने त्रियक ताड़ासन, जब हमने इधर और इधर मूवमेंट करा तो उसको हमने स्टमक की पूरी वॉल्व में टकराया और वहां से वेस्ट मटेरियल कलेक्ट करा. फिर हम उस पानी को नीचे की तरफ लेके जाते हैं, जो कि हम शिफ्ट करते हैं स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ कटी चक्रासन and Bhujangasana also. When we go for the downing posture, we show you in that Bhujang part also. Okay. Now we have to go for the another standing posture that is called Ekpad Pranamasana or tree posture also. ये आसन बहुत जरूरी है जिनको भी concentration improvement करना है. We always having problem for the concentration. So what we have to do, firstly, fix your eyes in any point. And then after, when you feel that I am fixed now, you have to take one leg and try to touch that piece to different, another one thigh, and then we have to join our palms. This is the basic posture of Ekpad Pranamasana. Then after, when you feel that I am totally fixed now, then you have to raise both the arms up, slowly up, slowly up. This position is very beneficial for those students, those who having any kind of concentration problem. Now slowly arms down. Open your arms now and open your leg. We have to do with another leg also, but firstly try to fix your body. यहाँ पर आपको 20 seconds relaxation देना है ताकि दोनों पैरों के बीच में जो आपने गैप दिया, एक का भार दूसरे पे दिया, उसके ब्लड को के फ्लो को प्रॉपर होने में. ये आपने करा दूसरे साइड से. अगेन मैं आपसे बोलूंगी, सबसे पहले एक वे को समझिए. फर्स्टली यू हैव टू फिक्स योर आईज, देन यू हैव टू टेक वन लेग, एनी लेग. सपोज यू हैव राइट लेग, so firstly you have to take right leg and keep right feet to your thighs, and then you have to join your arms. Then you have to raise your arms up. Very good. Then you have to slowly legs, hands down. Then open your leg, open your both hands and close your eyes here. यहाँ पर आसन करने के बाद at least for 20 to 40 seconds you have to relax your body for the proper blood circulation. Why this is good for concentration improvement? Because whenever go for the concentration problem, basic problem generated from our eyes. When our eyes is fixed, our
working process or our thought control process is also good. But यहाँ पर जब हम आंखों को फिक्स करते हैं तो हमारी बॉडी हमारे कंट्रोल में रहती है। आपने देखा होगा कोई भी बैलेंसिंग वर्क है, विदाउट आपकी आईज कंट्रोलिंग, आईज फिक्सनेस के साथ आप के कारण नहीं कर पाएंगे अगर आपकी आईज फिक्सेस नहीं है। तो दिस इज द गुड आसन फॉर एवरी स्टूडेंट, एवरी पर्सन, दोज हु वांट कंसंट्रेशन। ओके, तो ये स्टैंडिंग पोस्चर्स हो चुके हैं। अब हम चलते हैं लाई डाउनिंग प्रोसेस में। तो हम पहले स्टमक के बेस के आसन करेंगे। जिन्होंने अभी खाना खाया होगा या कुछ भी फूड लिया होगा, वो लोग पेट के बल वाले आसन ना करें, क्योंकि योग में जाने का सबसे पहला नियम होता है हमारा 2.5 आवर्स का डिफरेंस बिटवीन योर हैविंग फूड और एम्प्टी स्टमक। मीन्स आप सबको पता है, हम साइंटिफिकली जो भी इनहेल करते हैं, खाते हैं हम जो भी, वो 2.5 से 3 घंटे में हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रॉपरली वर्क करके उसको डाइजेस्ट करता है। तो योग में भी जब हम कोई आसन की तरफ चलते हैं तो हम एक डिफरेंस रखते हैं हमारे खाने और योग के करने के बीच में। कोई समय आप पर्टिकुलर बोलेंगे कि अर्ली इन द मॉर्निंग ही हमें योग करना है, तो दैट इज फैक्ट। बट इन दिस सिचुएशन जब हम लोग वर्किंग है, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम योग क्या नहीं करें। तो उसके लिए हम लोगों ने एक तरीका निकाला है कि नहीं, हम कर सकते हैं, बस हमें अपने स्टमक को एम्प्टी रखना है। उसके लिए हमें 2.5 से 3 घंटा हमें देना है। तो ये आसन हम पहले शुरू कर रहे हैं। देखिए, पहला आसन है इसमें स्टमक के बेस पे करने वाला, दैट इज स्टमक के बेस पे जाने से पहले हम करते हैं पहले वज्रासन। हाथ नीचे। पहले आप देखिए वज्रासन होता कैसे है। ये एक बेसिक आसन है जिसको हम पूरे योग में खाना खाने के इमीडिएट आफ्टर कर सकते हैं। क्यों, वो अभी मैं बताती हूँ। पहले देखिए इसको कैसे कर रहे हैं। नी के बेस पे आपको खड़े होना है। तो उसकी आप स्थिति देखिए, तो हल्के से ओवरलैप हो रहे हैं, आपका हील्स फैल जा रहे हैं और इसके ऊपर आपका हिप जाकर बैठ जा रहा है। ये हो गया आपका वज्रासन। हिप आपने डाउन करा और ये आप बैठ गए वज्रासन में। इस कंडीशन को समझिए। यदि अगर आपके फुट स्टैंडिंग पोस्चर में होंगे तो आप अच्छी तरह से नहीं बैठ पाएंगे। तो दिस इज द बेसिक मूवमेंट, बेसिक स्टेप्स फॉर द वज्रासन। वज्रासन के बारे में थोड़ा सा सुनेंगे। खाना खाने के इमीडिएट आफ्टर हम ये आसन कर सकते हैं। इसको करने से हमारे बॉडी के अपर पार्ट में, मतलब कमर से लेके स्टमक के अपर पार्ट में एक अलग तरह से हीट जनरेट होती है। क्यों हीट जनरेट होती है? क्योंकि ब्लड का फ्लो थॉरली अपर पार्ट ऑफ बॉडी में ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे का पार्ट हमने बैंड करके रखा है। तो ये जो एक और हीट जो साथ में काम करती है जठराग्नि के साथ, मतलब खाने की जो एनर्जी होती है, हीट होती है, उसके साथ साथ हमारे स्टमक में हमने ये एक अलग से एनर्जी जनरेट करवाई जो खाए हुए खाने को जल्दी डाइजेस्ट करने में हमारी मदद करती है। तो दिस इज बेसिक मूवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, जिनको भी चाहिए कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहे, उनको ये आसन डेली करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड वज्रासन। अब हम नेक्स्ट वन आसन चलते हैं। ये सिटिंग में ही कर लेते हैं, उसके बाद हम लाई डाउनिंग प्रोसेस में चलेंगे। वी हैव टू डू मंडूकासन फर्स्टली। मंडूकासन के लिए दोनों हाथ को हमें मुट्ठी बांधकर अपने स्टमक के पास रखना है, मतलब स्टमक का लास्ट पार्ट और हमारे थाइस की स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पर रखना है, सिर्फ रखना है। आपको प्रेशराइज नहीं करना कि आपका हाथ अंदर जाए। जहां आपका स्टमक है, जस्ट यू हैव टू कीप both the muttis there only. Okay, now here take breathe. यहाँ पर आपको breathe in करनी है and slowly breathe out करते करते body को down, pull down करना है and try to touch your forehead to your floor. इसका एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, जिसको भी बैकेक की दिक्कत है, those who having cervical problem, spondylitis problem, they not supposed to do this action because this is the forward bending. Now slowly come back, slowly come back, slowly come back, slowly come back. Very good. एक बार और करेंगे। यहाँ पर breathe in कीजिए again and again slowly come down and try to touch your forehead to your floor or sorry mat.
विदाउट लिफ्टिंग योर हिप्स। थोड़ा सा हिप उठेगा चलेगा, लेकिन आप पूरा हिप के बेस पे उठकर नहीं करेंगे। नाउ स्लोली कम बैक, स्लोली कम बैक, स्लोली कम बैक। ये हुआ मंडूकासन, वेरी बेनिफिशियल फॉर डायबिटिक पेशेंट्स। क्यों? क्योंकि ये हाथ जहां आपने रखे वहां है पैंक्रियास ग्लैंड, और आपने हाथ रखने के साथ उस पर प्रेशर दिया, और जब हमने फॉरवर्ड मूवमेंट करा तो पैंक्रियास कहीं ना कहीं प्रेशराइज हुई, और इस मूवमेंट को करने से वो अपना सिक्रेशन या तो बैलेंस या तो बढ़ाएगी। तो ये आसन, दिस इज वेरी बेनिफिशियल फॉर those who having any kind of pancreas problem. Okay, so this is the second one आसन। अब इसके साथ ही हम एक कॉन्ट्रा मूवमेंट भी करेंगे। दिस इज कॉल्ड हाफ कैमल पोस्चर। फुल भी ज्योति जी आपको करके दिखाएंगी, लेकिन अगर आपसे बने तो आप करिए, अदरवाइज लेट इट बी। हम हाफ तो करने की कोशिश करेंगे। हाफ के लिए क्या करना है, दोनों नीज के बीच में हल्का डिस्टेंस रखना है। फुट्स को खड़ा करके रखेंगे स्टार्टिंग में, फुट्स को खड़ा करके रखेंगे स्टार्टिंग में, ताकि हम इजीली इसको कर सकें। अब राइट हैंड से राइट नी को टच करेंगे और लेफ्ट आर्म को पीछे लेकर जाएंगे और पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। दिस इज कॉल्ड हाफ उष्ट्रासन। अगेन चेंज में आप वापस आएंगे धीरे से, और लेफ्ट टू लेफ्ट फुट को पकड़ेंगे, लेफ्ट आर्म से लेफ्ट फुट को पकड़ेंगे, और राइट आर्म पीछे एट द सेम टाइम जाएगा, और आप अपने आंखों से आपके टॉप फ्लोर को देखेंगे, टॉप वॉल को देखेंगे, या पीछे की वॉल को देखेंगे, रूफ को देखेंगे, या तो आप वॉल को देखेंगे। स्लोली कम अप, एक बार और करेंगे, एक बार राइट साइड से और एक बार लेफ्ट साइड से। राइट से राइट टच कीजिए, और इस सिचुएशन में बैक का कर्विंग देखिए, आपकी नी से आपकी कमर तक का पार्ट सीधा है, कर्विंग आपके अपर पार्ट में है। लेफ्ट टू लेफ्ट, थोड़ा सा इसको चेंज करते हुए आप करने की कोशिश कीजिएगा, तो आपको समझ में आएगा कि व्हाई दिस आसन इज बेनिफिशियल फॉर अवर बैकबोन एंड व्हाई दिस आसन इज गुड फॉर अवर थायराइड। नाउ स्लोली कम बैक, धीरे से बैठेंगे वज्रासन में। ये है हाफ कैमल पोस्चर। एटलीस्ट जब आप उष्ट्रासन की बात करते हैं तो इसको आप प्रॉपर उष्ट्रासन नहीं बोल सकते, इसको हाफ उष्ट्रासन बोलेंगे। लेकिन इन जनरल पर्सन, दोज हु नॉट knows about ustrasana properly, those who not able to do any difficult one asanas, they have to do firstly ustrasana, half ustrasana only. हाफ उष्ट्रासन से फुल उष्ट्रासन से 80% आपको प्रॉफिट जरूर मिलेगा, लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं अपने बैकबोन को पूरी तरह से ठीक करने की। अब स्ट्रेट फिर से होना है आपको। ये सिर्फ अगर आप देख सकते हैं तो देखिए, कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज सिर्फ देखिए। ये है फुल उष्ट्रासन। हाफ में आपने राइट से राइट पकड़ा था, लेफ्ट पीछे गया था। उष्ट्रासन में लेफ्ट भी एट द सेम टाइम दूसरी नी को, हील को टच करेगा और सिर पीछे की तरफ डाउन हो जाएगा और ये एक कर्व रहेगा। दिस इज कॉल्ड फुल उष्ट्रासन। नाउ स्लोली कम बैक, एक हाथ वापस आएगा पहले और एट द सेम टाइम दूसरा आर्म भी वापस आकर आप बैठ जाएंगे। बस ये हो गया, सिटिंग पोस्चर्स हो गए। ये हमने बैठने वाले आसन फिनिश करे। इसमें मर्जारी और व्याघ्र भी बाकी है, मैं आपको अभी दिखाती हूँ, डिस्प्ले करवाती हूँ। पहले आप ये मंडूकासन आपको क्लियर है, अभी हमने करा उष्ट्रासन, ये भी आपको क्लियर है। योग में हमेशा कहा गया वी हैव टू डू कॉन्ट्रा मूवमेंट ऑल्सो एवरी टाइम। व्हाई? बिकॉज इन डेली वी always do 99% in our daily life forward bending only. जब भी हम जो भी काम करते हैं, just thoroughly think about your work, starting with our morning session to evening session.
आप पूरे अपने वर्क को उठाकर देखिए, वी ऑल हैव टू डू ओनली फॉरवर्ड बेंडिंग मूवमेंट ओनली। हम बैक को बैकवर्ड बेंडिंग मूवमेंट देते ही नहीं है। तो योग में कहा गया जब भी हम फॉरवर्ड मूवमेंट करें तो एट द सेम टाइम हमें बैकवर्ड मूवमेंट भी करना पड़ेगा, ताकि हमारी बैक जिसके ऊपर ऑलरेडी हम ओवरलोडेड वर्क करते हैं उसको हम एक प्रॉपर वे दे पाए, ताकि हमारा ज्यादा साथ दे। चलते हैं नेक्स्ट वन आसन की तरफ, दैट इज कॉल्ड मरजारी आसन। Marjari asana is very beneficial for them, those who having any kind of back problem, neck problem or thyroid problem. Okay, तो इस तरह से चौपाए की तरह, मतलब based on your knees, based on your palms, आपको बॉडी होल्ड रखनी है। अब पोजीशन देखिए आपकी कमर की, इसको वन, इसमें आर्म्स आपके बिल्कुल सीधे और आपने आपके बैक के बीच में एक ऐसा गड्ढा बना लिया जिससे आपकी बॉडी कैट पोस्चर में आ गई। नाउ स्लोली टू में आपने अपने सिर को अंदर इतना डाला कि आपका बैक ने एक कुबड़ अलग तरह से एक फॉर्म किया कर्व को। अगेन वन, इसमें आर्म्स बिल्कुल सीधे रहेंगे, पूरा मूवमेंट सिर्फ आपके बैक में होगा। यू नॉट सपोज टू बेंड योर आर्म्स इन दिस पोजीशन, यू हैव टू डू होल प्रोसेस इन योर बैक ओनली। टू, you have to see inside only and try to make a curve in your back. Now slowly sit, relax and sit down. This is called Marjari or cat posture. इस आसन से हमारा बैक बहुत ज्यादा रिलैक्सिंग पोजीशन में आता है और आप इसकी कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, वर्किंग कैपेसिटी। This is called Marjari asana or cat posture. Now we have to go for the next one asana, that is called Vyagra asana. For Vyagra asana, we have to again take that position, Chaupaya position again we have to take. Now आपको इसको राइट लेग से पहले करना है, राइट लेग को पीछे की तरफ लेके जाएंगे और एट द सेम टाइम आप टॉप को देखेंगे, रूफ टॉप को। ये टू में आप एट द सेम टाइम इसी पैर की नी को अंदर लाएंगे एंड ट्राई टू टच योर नी टू योर नोज। नाउ अगेन अप, वी हैव टू डू ओनली विथ योर राइट लेग। नाउ टू, दिस इज कॉल्ड Vyagra asana. Now relax this leg, we have to do with left leg. Now we have to one, touch your left arm, so please touch it. Two, again one means आपने पूरा अपना पैर उठाया और आप इसको लेके गए। टू, नाउ रिलैक्स, अपने फुट को रिलैक्स कीजिए और आराम से बैठिए। ये हो गया आपका मरजारी आसन एंड व्याघ्र आसन, कैट पोस्चर एंड एट द सेम टाइम टाइगर पोस्चर। कैट पोस्चर एंड टाइगर पोस्चर बोथ आर द very beneficial part for our thyroid gland and our back part also. हाँ, जिनको सर्वाइकल स्पेंडोलाइटिस या आपके बैकबोन के वर्टिब्रास में गैप आ चुका है, उनको सिर्फ बैकवर्ड बेंडिंग वाला पार्ट ही करना है। लाइक आपको स्ट्रेचिंग पार्ट ही करना है। जब आप नी को अंदर लाते हैं वो वाला पार्ट स्किप करिए, तो आपके लिए ये दोनों ही आसन आपके बैकबोन के लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएंगे। नाउ वी हैव टू गो फॉर द स्टैंडिंग पोस्चर और स्टमक के बेस पे लाई डाउन होने वाले प्रोसेस अब हम करने जा रहे हैं। सिंपल वन आसनास मैंने लिए हैं, इसलिए लिए हैं जो हम इन जनरली हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता, लेकिन ये एक थॉरली आपको सारे डिजीज के लिए एक एक आसना दिए हैं जिनको करके हम अपने डिजीज को फ्री कर सकते हैं बॉडी से और अपनी बॉडी को रिलैक्स कर सकते हैं। नाउ वी हैव टू गो फॉर द अनदर वन आसन, दैट इज भुजंगासन।
दोनों पाम्स को अपने शोल्डर्स के बाजू में रखेंगे। हाथों की स्थिति देखिए, 90 डिग्री बन गया आपके आर्म्स के बीच में। शोल्डर के बाजू में आपके पाम्स होंगे, दोनों फुट्स पीछे से जुड़े होंगे। एंड ट्राई टू टच योर चिन टू योर मैट, on your mat. Now what we have to do? Firstly, take breathe and front part of your body you have to raise it up and try to see your roof. Now slowly down and slowly down. This is called Dhanurasana only. Sorry, Bhujangasana only. भुजंगासन एंड सर्पासन में अंतर होता है, वो मैं अभी एक बार और आपको दिखाने के बाद डिस्क्राइब करती हूँ। अगेन आप स्लोली अप नेवल तक उठते हैं हम भुजंगासन में। नाउ स्लोली डाउन। दिस भुजंगासन इज वेरी बेनिफिशियल फॉर योर होल बैकबोन वर्टिब्रास, लाइक upper part of your backbone or lower part of your backbone. Now relax your body, relax your arms. This is called Bhujangasana. Very beneficial for back also and your thyroid also. Now we have to go for the another one asana that is called Sarpasana. In generally Sarpasana and Bhujangasana हम साथ में बोल देते हैं, लेकिन there is minor difference between these two postures. So we have to show Sarpasana. We have to keep both the palms beside the shoulders. Join your feet. Now breathe in slowly up. यहाँ पर आपको जहां तक हाथ सीधा हो रहा है वहां तक उठना है. This is called Sarpasana only. This one also good for your back. Slowly down and down. But when we having lower backbone problem, we only have to do Bhujangasana. Last one posture. Again up. Slowly down. ये सारा पोजीशन हमें सिर्फ और सिर्फ स्लोली ही करना है. नाउ रिलैक्स. दिस इज कॉल्ड सर्पासन. आप अगर नेट पे सर्च करेंगे सर्पासन के लिए तो आपको एक और पोजीशन मिलेगी. सो वी हैव टू जॉइन आवर फिंगर्स फर्स्टली एंड slowly try to up our front part of body. Up. But this position is slowly down. Sarpasana is good for your back also, but in this position ये वो लोग easily कर सकते हैं जो लोग हमेशा योग करते आ रहे हैं. अगर आपकी body flexible नहीं है तो try to do in first Sarpasana only. There is arm support also, no? That's why. पेट के बल के सारे आसन फिनिश करते हैं. एक आसन और है भुजंगासन, धनुरासन. ये और लेते हैं. दोनों पैरों को बेंड करेंगे. ये हायर स्टेज के आसन में आता है जो कि आपके थायराइड और बैक के लिए होता है. मैं उन लोगों को बिल्कुल प्रिस्क्राइब नहीं करूंगी जिन्होंने कभी योग नहीं करा या स्टार्टिंग ऑफ योगा सेशन में है, लेकिन आपको योग के बारे में हम बता रहे हैं तो इन आसनों को बताना भी जरूरी है. So you have to see this asana only. If you want to do, so do it also. Now here breathe in and stretch your whole body up. This is the basic movement which is called Dhanur Asana. Body को धनुर की तरह पोस्ट रखना है और ऊपर देखना है. Now slowly down and down. आप देख पा रहे होंगे पूरी बैक का पार्ट आपने स्ट्रेच आउट कर लिया, थायराइड को कर लिया, स्टमक के बेस पे आप ऊपर होल्ड हैं. मतलब ये आपके फैट को तो बर्निंग प्रोसेस में ले ही जाएगा, साथ ही साथ आपके जितने भी हार्मोन्स रिलेटेड ऑर्गन्स हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेशराइज करेगा काम करने के लिए. वन मोर टाइम आप देखिए. अगेन अप
slowly up and stretch your body up. Very good. This is called Dhanur Asana. Now slowly down and relax your body. अब पैरों को खोलना है और पेट के बल के आसन फिनिश, पीठ के बल के आसन में आते हैं. पीठ के बल करने वाले सारे आसन कहीं ना कहीं हमें बैकेक की प्रॉब्लम से निजात दिलाते हैं, या स्टमक फैट डिपॉजिट ज्यादा है, स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए दीज जो आसनास जो अभी हम करने जा रहे हैं वेरी बेनिफिशियल. फर्स्टली हम करने जा रहे हैं कंधरा आसन. कंधरा आसन के लिए दोनों पैरों को बेंड करना है लाइक दिस. पैरों को बेंड करेंगे मतलब हमारे दोनों पैरों के फीट हमारे फ्लोर से टच रहेंगे. अच्छा, इसमें बॉडी की पोजीशन आपको खुद देखनी होगी. अगर आपको लगता है सपोज कि आपके पैर टच रहेंगे आपस में तो आप उठ पाएंगे, दैट इज गुड. अगर आपको लगता है थोड़े पैरों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो गुड और दैट इज ऑल्सो कंसिडर. अब दोनों हाथों से अपनी हील्स को पकड़िए, या तो हो सके तो अपने एंकल्स को पकड़ लीजिए. अब अपनी पीठ को उठाना है आपको. एज मच एज पॉसिबल यू हैव टू स्ट्रेच योर बैक. ऊपर की तरफ उठाएंगे और बॉडी का एक शेप बनना चाहिए. नाउ स्लोली डाउन and slowly down. This is called Kandra Asana, very beneficial for hormonal problem in your body. Again, up and up. कैसे ये आपका हार्मोन प्रॉब्लम को ठीक करेगा आपको खुद समझ में आ रहा होगा. हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं जो कि हार्मोन जनरेटेड प्रोसेस में लगे हुए हैं, उनको आपने स्ट्रेचिंग दी है और ब्लड के फ्लो को एक्स्ट्रा करवाया है. So this is the good for your back also, your neck also, and your hormone process also. Now slowly down and slowly down. This is the contra position for your back also. So this is good for your back also. Okay. Now एक आसन जो अब हम करने जा रहे हैं, इन जनरल पर्सन जो सिटिंग वर्क ज्यादा करता है, खड़े होने का काम ज्यादा होता है, उनके लिए मेरु वक्रासन is the रामबाण only, very beneficial. For Meru Vakrasana, what we have to do? Firstly, bend both the legs. Now interlock your hand fingers and keep inside your neck like this. अब ये जो दोनों हाथ है ना, ये एकदम पेस्टेड हैं इन योर फ्लोर, इन योर मैट. इस बात का ख्याल रखिएगा. करना क्या है मेरु वक्र में? मीन्स मेरु वक्र मीन्स आपके पूरे बैकबोन को ट्विस्टिंग देनी है. एट द सेम टाइम आपका दोनों लेग्स डाउन होंगे राइट साइड, एंड एट द सेम टाइम योर हेड डाउन होगा लेफ्ट साइड. वन, both the legs down right side and head down left side. Again, change your leg position and your head position also. Two. अपने दोनों फुट्स, दोनों लेग्स और अपने हेड को चेंज. महसूस कीजिए स्ट्रेचिंग. ये जो दोनों फुट्स हैं हर बार आगे भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको हिप्स के पास लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगेन चेंज. यू हैव टू ट्विस्ट योर बैक, your lower part of back, your upper part of back, and your neck also. Now straight and relax. Open your legs, open your hand also. Now close your eyes. दोनों पैरों के बीच में little bit distance और आंखें बंद. आसन के बाद योग में रिलैक्सेशन का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, स्टेप है, जिसके बिना हम आगे चल ही नहीं सकते. तो दीज होल आसनास, वैसे तो योग में बहुत सारे आसना हैं,
लेकिन हमारा क्या पर्पस है योग करने का? दिस इज द बेसिक क्वेश्चन फॉर अस. व्हेन वी वांट टू डू asana for the back problem, there is asanas also. If we want to do stomach problem, there is asanas also. If we have neck, arms, shoulder having problem, there is asanas also. So सारे आसनास तो हमने कर लिए. अब बारी आई हमारे बॉडी के रिलैक्सेशन की. योग और अदर एक्सरसाइजेस में यही अंतर होता है. योग हम आसन तो करते हैं, साथ में रिलैक्सेशन का ख्याल रखते हैं. और अदर एक्सरसाइजेस की बात करें लाइक जुम्बा, एरोबिक्स, जिम, वहां पे हम मेंटल रिलैक्सेशन का काम नहीं करते. तो अब थॉरली रिलैक्सेशन की बारी आई, तो इसको हम देते हैं नाम शवासन. दिस इज द only asan which is very good for our relaxing mind and body also. क्या करना है इस पार्ट में? दोनों पैरों के बीच में लिटिल बिट डिस्टेंस यू हैव टू मेंटेन. कीप योर palms relaxed, head should be straight and close your eyes. We have to thoroughly go for your body circulation. You have to see your body part now. जस्ट मन में सोचिए कि मुझे अपने हर एक बॉडी पार्ट को रिलैक्सेशन देना है. सो हाउ वी हैव टू डू, हाउ वी कैन डू लाइक दिस. कैसे? अपने मन को लेके जाइए अपने राइट साइड ऑफ बॉडी पर, अपने फुट्स पर जाइए, अपने राइट पैर के फुट्स पर जाइए. मेंटली उसके बारे में सोचिए और मेंटली सोचते हुए उसको रिलैक्स करते जाइए. ड्यूरिंग द शवासन हमें थॉरली अपने बॉडी के हर एक पार्ट को रिलैक्स करना है. स्टार्ट करते हैं विथ योर राइट पार्ट ऑफ बॉडी. राइट पैरों पर राइट पैर पर जाएंगे मेंटली, एंड वी हैव टू रिलैक्स अवर राइट थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, third finger, fourth finger, right leg, foot, ankle, knee, thighs, right side of our back. ऊपर चलेंगे, our right shoulder, right arm, elbow, wrist, right palm, right hand fingers, thumb, first finger, second finger, third finger and fourth finger. अब चलते हैं लेफ्ट पार्ट ऑफ बॉडी पर. लेफ्ट पाम से शुरू करते हैं. अब लेफ्ट पाम, थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, palms, wrist, elbow, shoulder, side muscles, left thigh, left knee, left lower part of leg, ankle, foot, left foot. इसके बारे में सोचिए और उसको रिलैक्स कीजिए. अब फिंगर्स, पूरी फिंगर्स को रिलैक्स कीजिए. अब चलिए टॉप ऑफ द बॉडी पर हमारा फेस पार्ट पे चलते हैं और इनको रिलैक्स करते हैं. सबसे पहले अपने फोरहेड को रिलैक्स कीजिए. अपर पार्ट ऑफ हेड को रिलैक्स कीजिए. फोरहेड, राइट आईब्रो, लेफ्ट आईब्रो, राइट आई, लेफ्ट आई, राइट चेक, लेफ्ट चेक, राइट नोज, लेफ्ट नोज, फ्रंट पार्ट ऑफ योर नोज, अपर लिप, लोअर लिप, right ear, left ear, our cheek, neck, chest, right chest, left chest, middle part of your chest, stomach, whole stomach, your whole body relax, relax and relax. This is the basic part of your yoga.
After asanas, you have to thoroughly move on your body parts and thoroughly relax your whole body part. So we will try to relax whole body parts now. Now here, take slowly and deeply breathe. And slowly, deeply breathe out. Now slowly move your arms, hand fingers, leg fingers, shoulders slowly, head slowly, right and left, and slowly turn towards your right or left side and sit down. That is the asanas which is done by us, whole asanas for whole body. अब बारी आई प्राणायाम की, तो प्राणायाम की बारी आई तो हम बैकबोन को थोड़ा सा स्ट्रेट करके बैठेंगे. इन जनरल बात आती है आसन प्राणायाम की, तो आसन के बाद प्राणायाम आते हैं. हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आसना एंड प्राणायाम. आसन इज विथ योर बॉडी पार्ट्स. what kind of movement, or sorry, which kind of movement which is done by our body parts, that is called asana only. And those kind of activity which is done by our nose or which is done by our breathe only, that is called pranayam, simply. अब हमें करना है प्राणायाम. क्या होता है प्राणायाम करने से, क्यों करना है? ये दो नोज दी है हमें. दो नोज हमें इसलिए दी है क्योंकि कारण है उसका, ये दो नोज हैं, दो वे हैं. क्या कारण है कि ये दो वे दी गई हैं? एक राइट और एक लेफ्ट. लेफ्ट नोज का काम है हीट जनरेट करना बॉडी में, और सॉरी लेफ्ट नोज का काम है हमारी बॉडी में ठंडक डालना, और राइट नोज का काम है उसको गर्माहट लगना. मतलब वी हैव हीटर ऑल्सो एंड वी हैव एसी ऑल्सो इन अवर बॉडी एट द सेम टाइम. हम लोगों को देखते हैं, ऋषि मुनि को देखते हैं, बहुत ठंडी में बैठे रहते हैं, बहुत गर्मी में बैठे रहते हैं. हाउ? विदाउट एनी वार्म वाटर, वार्म क्लॉथ्स और एनीथिंग. कैसे होता है ये? ये हमारी बॉडी के अंदर शक्ति भगवान ने ऑलरेडी दी है, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं. इसका उपयोग करके देखिएगा कभी. एक सिंपल उदाहरण दे रही हूँ आपको. कभी आपने फुल ऑफ स्टमक खा लिया, कंट्रोल नहीं हुआ, स्टमक फुल हो गया, अनईजी फील हो रहा है, लेफ्ट साइड करवट लीजिए और लेट जाइए. क्या होगा? 2 मिनट तक जब आप लेटे रहेंगे तो हमारी राइट नोज कंटिन्यूसली चलना शुरू होगी, बॉडी में हीट जनरेट होगी, और वो एक्स्ट्रा हीट आपके खाए हुए ज्यादा खाने को बहुत जल्दी डाइजेस्ट करेगी. ये हमारी बॉडी का कमाल. इसी को हम इन दोनों नोज को यूज करके ही हम हमारी बॉडी में हीट और हमारी बॉडी में एट द सेम टाइम कोल्डनेस बैलेंस कर सकते हैं. तो अब हम यहाँ 5 प्राणायाम डिस्प्ले कर रहे हैं. फर्स्टली स्टार्ट करते हैं विद लोअर स्टेज से, दैट इज कॉल्ड अनुलोम विलोम, जो आपने सुना है. इसमें क्या करते हैं, सिंपली आप ब्रीद इन करेंगे और सिंपली ब्रीद आउट करेंगे बिना रुके. मतलब लेफ्ट नोज से ब्रीद इन करा, राइट नोज से ब्रीद आउट कर दिया, अगेन राइट नोज से ही ब्रीद इन करा और लेफ्ट नोज से ब्रीद आउट करा. सिंपल प्राणायाम के फंडे को समझिए. व्हाई दैट प्रोसेस इज बेनिफिशियल फॉर इंप्रूविंग अवर इम्यूनिटी पार्ट, इम्यूनिटी बूस्ट ऑन प्रोसेस. व्हाई? बिकॉज आप लंग्स को जितना एक्सपेंड करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दोनों का एक्सेलरेशन एंड इनहेलरेशन दोनों में आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेशन देगा, और ये आपके लंग्स के ब्रोंक्यूल्स को एक्सपेंड करेगा, उनको एक्स्ट्रा वर्क कराने के लिए प्रेशराइज करेगा. तो यहाँ पर आपको एफर्ट्स के साथ यू हैव टू टेक ब्रीथ विथ एफर्ट्स एंड यू हैव टू ब्रीथ आउट विथ एफर्ट्स. This is basic pranayam in our yoga, that is called Anulom Vilom. Without any pressure, without any holding, we have to take large breath
and breathe out. Now relax. This is Anulom Vilom Pranayam. Now we have to go for the next pranayam, that is called Nadi Shodhan Pranayam. Nadi Shodhan in the sense, in this pranayam, we have to breathe from your left side, left nose, and then we have to hold some time. Now, इसको आप ऐसे समझिए, we have to take in 5 counting, and we have to hold it in 5 counting, and we have to go breathe out in 5 counting. See, 1, 2, 3, 4, 5. Breathe in. Now hold. 1, 2, 3, 4, 5. Now breathe out with your right nose. Slowly. 1, 2, 3, 4, 5. Now again breathe from your right nose only. 5 counting. 1, 2, 3, 4, 5. Now you have to close both the nose and hold it. 1, 2, 3, 4, 5. Now you have to down. 1, 2, 3, 4, 5 with your left nose. This is the 1 chakra for Nadi Shodhan Pranayam. Again, you have to do this. From your left nose, you have to breathe. 1, 2, 3, 4, 5. Now you have to close both the nose and hold your breath. 1, 2, 3, 4, 5. Now you have to open your right nose and breathe out slowly. 1, 2, 3, 4, 5. Now you have to take right side nose breathe only. 1, 2, 3, 4, 5. Now you have to hold it. Close both the nose. 1, 2, 3, 4, 5. Now you have to down. 1, 2, 3, 4, 5 with your left nose. Now relax. Relax your arm. यहाँ आपने फिंगर की पोजीशन देखी, शायद आपको समझ में नहीं आई होगी अगर, तो इसका एक सिंपल वे भी है. ये थंब से, राइट हैंड के थंब से आपने राइट नोज को बंद करा और दूसरी उसके बाजू वाली जो फिंगर है उसी से आपने लेफ्ट को बंद कर लिया. तो इन दोनों फिंगर से ही आपका काम हो जाएगा राइट और लेफ्ट नोज का. ये हो गया नाड़ी शोधन प्राणायाम. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट प्राणायाम जो हम स्टूडेंट्स के लिए बोल सकते हैं, जिसको करने से और हमारे लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे माइंड में अल्फा, बीटा, गामा, थीटा ये वेव जनरेट करता है. दैट इज कॉल्ड भ्रामरी प्राणायाम. फॉर भ्रामरी प्राणायाम यू हैव टू फर्स्टली क्लोज योर ईयरबड्स. ईयर्स को आपको बंद करना है. अब आप चाहे वो थंब से कर लें, चाहे फिंगर से कर लें. इन जनरली आप देखेंगे तो आपकी 5 उंगलियों का काम आपकी बुक्स में दिए गए हैं, लेकिन हम अगर इसको इजी वे में करें तो सिर्फ थंब से हम हमारे ईयरबड्स को बंद करते हैं और 2 फिंगर्स को हम रखते हैं हमारे आईज पर. अब यहाँ पर आपको ब्रीथ इन करना है एंड हमिंग साउंड के साथ ब्रीथ आउट करना है. ठीक. भावरे की तरह गुंजन, मतलब हमारे जो ब्रीथ हमने इनहेल की है, we have to breathe out with humming sound. One more time, you have to do breathe in, then humming sound, breathe out. This is very good pranayam for our mental balance, concentration improvement, for our mental peace. Now relax your palms, relax your arms, and
For 20 seconds, you have to feel this vibration in your mind. Alpha, beta, gamma, theta. ये सारी वेव्स आपके ब्रेन के अपर पार्ट पर जनरेट हुई और इसने कहीं ना कहीं आपको मेंटली बैलेंस्ड करा. Now we have to go for the fourth one pranayam, that is called Bhastika and Kapalbhati. Firstly आप समझिए, हम इन जनरली भस्तिका कपालभाति को हमेशा सुनते हैं और मानते भी हैं कि यही दो प्राणायाम होते हैं सिंपल, लेकिन ऐसा नहीं है. समझिए, पहले एक बलून आपने देखा होगा सिंपल, जो हम मार्केट से लाते हैं. हम अगर ऐसे ही सिंपल उसको पकड़ के प्रेशर से फुलाने की कोशिश करते हैं तो उसमें बहुत प्रेशर लगता है, फूलता है थोड़ा सा, फिर और एक्सपेंड होता है. फिर हम क्या करते हैं, हमें नहीं होता है तो हम उसको ऐसे खींच के फिर भुलाते हैं और एक्सपेंड होता है. वही काम हमें हमारे लंग्स के साथ करना है. क्या करना है, ब्रीथ को खूब भरना है और बाहर करना है, फिर भरना है, फिर बाहर करना है, फिर भरना है, फिर बाहर करना है. ये क्या किसमें करना है, भस्तिका में. कपालभाति का अलग सिचुएशन है. अच्छा, दोनों ही पोजीशन में whenever you have to do Bhastika and Kapalbhati, your stomach muscles specifically included with this process. So my personal thinking is, whenever you go for the Bhastika and Kapalbhati, firstly for the week, for the month, you have to firstly do Nadi Shodhan for 25 to 50 times at least in a day, and भ्रामरी प्राणायाम. वाई? क्योंकि हम हमारे लंग्स को उसके लिए तैयार कर लें एंड हमारे स्टमक की मसल्स को थॉरली स्टार्टअप कर दें, थॉरली प्रेशराइज कर दें कि हमें कुछ आगे बढ़ना है. इन जनरली क्या होता है, whenever we go for the Bhastika and Kapalbhati, our stomach getting pain or our stomach having pain. Why? Because that muscles is not habitual for that continuously up and down, up and down and up and down. That's why we all suggest you कि आप whenever go for the Bhastika and Kapalbhati, you have to firstly do Nadi Shodhan for a month. चलिए अब हम शुरू करते हैं भस्तिका. देखिए, बैकबोन सीधा है, आप अच्छे से मुद्राज में बैठे हैं. अब आपको भस्तिका करना है. What we have to do? Firstly, take breathe and breathe out. Again, breathe in, pressure, breathe out. Again, breathe in, breathe out. Again, breathe out. In, 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 out. This is called Bhastika प्राणायाम. आपने प्रेशर से भरा, अपने ब्रोंक्यूल्स को आपने प्रेशराइज करा भरने के लिए और उतना ही प्रेशराइजेशन के साथ आपने आउट करा. अब बारी आई कपालभाति की. There is the difference between Kapalbhati and Bhastika. In Bhastika, you have to take breathe and breathe out in the same time. But in Kapalbhati, you have to take in and out in some pieces. Pieces in the sense, एक छोटे छोटे टुकड़ों में आपको एक भरी हुई ब्रीथ को आउट करना है. See, firstly you have to breathe in. You have to breathe in. Now out, 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 out. Again breathe in. 10 times में अपनी ब्रीथ को टुकड़ों में निकालिए. Out, 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 out. This is the difference between Bhastika and Kapalbhati. Now open your eyes, relax. Asana and pranayam and relaxation ka chakra finish. But when we go for the students material or students process, there is certain question
regarding us. What is the good for our students, and there is no time. उनके लिए टाइम नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि उनको बहुत सब कुछ लेना है. हमारे पास भी एट द सेम टाइम यही प्रॉब्लम है कि हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन हमें एट द सेम टाइम हेल्दी रहना है. तो हम क्या कर सकते हैं योगा में? आपने बताया तो बहुत कुछ बता दिया हमने, मर्जारी बता दिया, शशांक, व्हाटएवर, बहुत सारे आते हैं. लेकिन हम अगर मोरल ऑफ द स्टोरी की बात करें तो हम क्या ऐसा करें जिससे हमारा बैक, स्टमक, फैट डिपॉजिट, फ्लेक्सिबिलिटी, अवर मेंटल बैलेंस, ये सब कुछ रहे. और आप किसी को क्या बता सकते हैं? तो आप बताएंगे एक सूर्य नमस्कार और एक पाद प्रणाम आसन. 3 पोस्चर हम पहले कर चुके हैं. सूर्य नमस्कार के 12 स्टेप्स आप और देख लीजिए, जिसको आप देखकर समझकर करेंगे तो आपके डेली लाइफ में किसी और आसन को इंक्लूड करने की शायद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपको कोई अलग डिजीजेस नहीं है तो. ये है सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार के लिए आपको दोनों पैरों को जोड़कर खड़े होना है. देयर इज 12 स्टेप्स, बेसिकली 7 है, जिसमें से 5 आपके रिपीट होते हैं. 2 आसनास, बैकबोन को सीधा रखना, हमने देखना है, हाथों को जोड़ना है. दिस इज द फर्स्ट नंबर पोजीशन. Then 2, raise your arms up till your body back. You have to curve your back. Then 3, pull your body down and try to touch your hand fingers to your leg fingers at least. Then for 4 number, you have to keep both the palms besides your foot, and right leg should be back and look up. Your right knee should be touching your floor, and you have to see your roof. 5. For 5, you have to take your left leg also at the back and try to maintain your body in your mountain posture. See. For 6 number, firstly you have to down your both the knees, then chest and your chin. Then for 7 number, you have to raise front part of body up. This is called Bhujangasana. Then 8 number, again you have to repeat first 5. This is the mountain posture. 5 and 8 same. Then 9, right leg come between your both the palms. This is the 9 number, and 4 number same. Then 10, you have to come with your left leg also and try to touch your palms to your knees, foot. That is 3, and 10 number same. Then 11, raise your arms up till your body back. This is 11 and 2 number same, and 1 and 12 number same. Namaskar mudra. This is called सूर्य नमस्कार. एक बार मैम कर रही हैं, फिर से और देख लीजिए आप. मैं आसन के नाम के साथ आपको दिखा रही हूँ. दिस इज कॉल्ड नमस्कार मुद्रा. देन हस्त उत्तान आसन, देन पाद हस्तासन, देन अश्व संचालना, देन पर्वतासन, देन अष्टांग नमस्कार. अष्टांग मतलब 8 शरीर के पार्ट टच होंगे. देन भुजंगासन, देन पर्वतासन, देन अश्व संचालना. इसमें पैरों का ख्याल रखेंगे, जो पैर 3rd 4th नंबर में लेके जाएंगे वही 9 में वापस लाएंगे. देन पाद हस्तासना, देन हस्त उत्तान आसना, देन नमस्कार मुद्रा. Now, sit down. Sit down. This is the Surya Namaskar. Everyone knows about this also.
This is the whole 12 posture beneficial for every part of body. Like अगर आप इसको बोलने की कोशिश करेंगे या बताने की कोशिश करेंगे तो आप इसको बता पाएंगे कि पैर की उंगलियों से लेकर अपर पार्ट ऑफ हेड तक बॉडी का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो सूर्य नमस्कार में इंक्लूड नहीं होता. सो दिस इज द बेसिक movement and very beneficial movement in whole yoga, in whole asana or in whole part of body. So whenever you prescribe for the student for yoga or for asana, this is the whole package of asana, Surya Namaskar and tree posture for the students only. Now we have to do Jal Neti. जब तक मैं जल नीति के बारे में आपको बता रही हूँ, मैम रेडी हो रही हैं, आपको दिखाती हैं. जल नीति क्या है? वी हैव साइनस प्रॉब्लम, माइग्रेन प्रॉब्लम ऑल्सो, हेड प्रॉब्लम और पोल्यूटेड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम. सभी को प्रॉब्लम है. हमें इस समय कुछ भी प्योर नहीं मिल रहा. लाइक वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, वॉट एवर यू हैव ईटिंग, आप इनहेलिंग भी कर रहे हैं तो आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रही है. तो जल नीति इज द वन प्रोसेस जिसको आप कभी भी खाने का कोई प्रिकॉशन नहीं है. दिन में एक नॉर्मल पर्सन को 2 बार आप करने के लिए बोल सकते हैं. लेकिन मैं यहाँ पर आपको प्रिस्क्राइब करूंगी, जो भी नॉर्मल पर्सन हैं, डॉक्टर्स हैं, हमारे लेक्चरर्स हैं और हम लोग सारे टीचर्स हैं, जिनको बहुत धरली कंटिन्यूसली आंखें, कान, हाथ, पैर सबको मूवमेंट करना पड़ता है. जल नीति इज मस्ट फॉर अस. ड्यू टू कोविड दिस इज द नेसेसिटी ऑफ अस कि हमें ये जल नीति करना आना चाहिए. देखिए इसको, ये एक पॉट है ना, बीच में रख लीजिए, ये यहाँ बीच में. हाँ. ये एक पॉट है जो आपको Amazon पे मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाएगा. ये पॉट ना मिले तो आपको सिरेमिक पॉट भी मिल जाएगा. इस पॉट को फिल करना है आपको लिटिल बिट वार्म वाटर और सॉल्टी वाटर. वार्म कितना होना चाहिए? ये जो आपके हाथ की ये पीछे वाली त्वचा है, इस पर आप इसको डाल के देखिए, इतना गर्म होना चाहिए कि इस त्वचा में ना लगे आपको. और सॉल्टी कितना? जितना आंसुओं का स्वाद होता है, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्ट नहीं. अगर आप ऐसे मेजरमेंट की बात करेंगे तो अगर आप 1 जग पानी बनाएंगे 1 लीटर में तो 1 टेबल स्पून नमक पड़ेगा उसमें. ठीक है, ऐसे आपने पानी ले लिया. मैम बैठ के कर रही हैं, आप खड़े होकर भी कर सकते हैं, वो खड़े होकर भी दिखाएंगे. ठीक है, बैठकर आप ऐसे करें. एक हाथ आपने पीछे रखा और जैसे राइट हैंड में आपने पॉट को लिया है तो आपको नीचे झुककर अपने राइट शोल्डर, सॉरी लेफ्ट शोल्डर को देखना है. अब यहाँ से आपने नोज के एक पार्ट में लगाया इसको और ये पानी पास आउट हो गया इजीली. इस समय आपको क्या करना है? अपने मुंह से आवाज निकालनी है. ये पूरा आउट हो गया. बस आप पॉट नीचे रखकर पूरा पानी आपको पूरा साफ कीजिए. दोनों नाक को दबाइए, अच्छे से साफ करेंगे. फिर से ये भरेंगे और आप लेफ्ट नोज से आपको करना है. मतलब एक बार आप पॉट भरिए, राइट नोज से पूरा पास आउट कीजिए और दूसरी बार भरिए और अब ये लेफ्ट नोज से पास आउट होगा. ये देखिए, आपने शोल्डर को देखा, नोज के एक नोज पे लगाया और यहाँ से मुंह से ब्रीद इन ब्रीद आउट करेंगे आप. और ये पूरा पानी हो गया. हाँ, आप पूरी नोज को, एक को दबाएंगे, दूसरे को अच्छे से साफ करेंगे, दूसरे को दबाएंगे, दूसरे को साफ करेंगे. ये हो गया जल नीति. आराम से साफ कर लिया आपने. अब जब तक मैम बैठ रही हैं तब तक मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ.
जब ये गर्म और सॉल्टी वाटर हम अपने इस पार्ट से पास आउट करते हैं तो क्या होता है? ये सॉल्टी वाटर आपके यहाँ के जितने छेद हैं, जिसको हम साइनस बोलते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, इसको आप समझिए छन्नी होती है जिससे हम चाय छानते हैं। इसके पोर्स अगर बंद हो जाते हैं तो क्या करते हैं हम? ऐसे गर्म पानी उससे पास करो, थोड़ा सा छटको, साफ हो जाता है। वही छोटे छोटे पोर्स हमारे यहाँ हैं। साइनस माइग्रेन होने का कारण है कि हमारे ये जो छोटे छोटे छेद हैं ये कफ से आपने भर दिए हैं, कफ से भर गए। तो अब ये कफ कैसे निकलेगा? आप अंदर जाके कुछ ब्रश से तो निकाल नहीं सकते, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे? हमें ये भगवान ने विदा दी है, भगवान ने नहीं, सॉरी, हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ये विदा दी है, दैट इज कॉल्ड जल नीति। इससे हम गर्म पानी और नमक सॉल्टी वाटर से पास आउट करते हैं तो ये सारे रोम छिद्र में जितना भी कफ होता है वो पूरा बाहर आता है और हमें साइनस, माइग्रेन, गुस्सा, यहाँ हेडेक कंटिन्यूअसली बने रहना, जितना भी हम इनहेलिंग में जितना भी डर्टीनेस लेते हैं, लाइक हमारा एयर पोल्यूटेड है, वो सब कुछ हम इससे बाहर कर देते हैं, जिससे ये सारा पार्ट बिल्कुल फ्री रहता है। अब ये आसन जल नीति करने के बाद करना क्या है? ये पूरा पानी बीच में भरा ना रहे तो उसको कैसे पास करेंगे? तो थ्रू दिस आसन, वज्रासन में बैठे हैं, हाथ ऊपर कर लिया है, अब धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। जहां पर आपकी नोज आ जाए वहां पे अपने एक हैंकी को रखिए ताकि बीच का जो रुका हुआ पानी होगा वो पूरा आपका इस सिचुएशन से निकल जाएगा। स्लोली कम अप, वापस आएंगे आप, धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए, धीरे धीरे वापस आइए। ऐसा आपको 3 to 4 टाइम्स करना है। स्लोली डाउन, और जब आप नीचे आते हैं तो थोड़ा सा अपनी दोनों नासिकाओं से जल्दी जल्दी ब्रीथ को पास आउट कीजिए। तो जितना भी पानी है वो आपके बाहर आराम से आ जाएगा। जब पानी रुकेगा नहीं तो आपको सर्दी होने की थोड़ी सी जो संभावनाएं रहती हैं वो भी चली जाती है। बस हाथ नीचे, रिलैक्स कीजिए और खड़े होकर भी एक मूवमेंट देख लीजिए। मान लीजिए कभी आपके पास जगह नहीं है, आपने जल नीति करा है, बैठने की जगह नहीं है, तो आप कैसे पानी पास आउट करेंगे? एक नाक को दबाएंगे, दोनों हाथ नीचे करेंगे, एक हाथ को नाक को दबाएंगे, कपड़ा अपने पास रखिए नाक के, तो ये पूरा जो पानी है वो पूरा बाहर। देखिए, दूसरी नाक दबा के एट द सेम टाइम ये पूरा पानी हो गया बाहर। बस, थैंक यू ज्योति जी, बैठिए। ये हो गया हमारा जल नीति का पार्ट फिनिश। मेरे ख्याल से एक योग की बात करें, एक प्रॉपर योग की बात करें तो आई डिस्क्राइब एवरी पार्ट ऑफ योग which is very beneficial for us. Jal Neti I also give you because of this pandemic time. Actually ये pandemic time नहीं है, pandemic time तो मतलब सभी लोगों को प्रॉब्लम हुई है, लेकिन अगर आप योग में बात करें तो ये समय था या ये समय है या ये समय आगे भी कई बार शायद आएगा, हम ही सभी की गलतियों के कारण। तो हमें उसको कैसे बचाव करना है, योग ही एक माध्यम है जो शारीरिक और मानसिक के साथ हम इस ऐसी पैंडेमिक सिचुएशन में हम अपने आप को भी बाहर रख सकते हैं, अपने परिवार को भी और अपने साथी जनों को भी। जल नीति इज मस्ट फॉर द कोविड because that disease is related with this part and this particular Jal Neti is also beneficial for this same part. In this pandemic season हमारे योग के जितने भी साधक रहे हमारे केंद्र के अराउंड 1000 साधकों के साथ हम करते हैं, उन सभी ने जल नीति को अपने घर का, अपने शरीर का एक हिस्सा बनाया था फॉर दिस 2 years। तो मैक्सिमम लोग जो इस चीज में फंस नहीं पाए कोविड में, और जो अगर फंस भी गए तो विद इन 5 to 7 days वो thoroughly वापस आ गए। तो दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल, प्लीज डू दिस जल नीति और रेगुलरली इन द सेंस, अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो शाम कर लीजिए,
शाम नहीं कर पाते दोपहर कर लीजिए, रात में कर लीजिए, whenever you have time, please do this Jal Nechi properly and regularly. This is my humble request to you all dignitaries. प्लीज इसको करिए और इसको करने के बाद अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, आपको प्रॉफिट होगा ही होगा, डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। आपको अगर नहीं समझ में आया हो, कोई दिक्कत हो, तो आप हमसे पूछ भी सकते हैं। आसन, प्राणायाम, रिलैक्सेशन, सारे पार्ट को कवर करते हुए आज की योगा का प्रैक्टिकल सेशन हमने कवर अप करा। आई होप देयर इज नो कंफ्यूजन एट ऑल। अगर कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज आप कैरी ऑन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अदरवाइज स्वाति मैम, इट इज ओवर। सॉरी, वेट फॉर 5 मिनट्स ओनली। एक स्टोरी मैं जस्ट कंक्लूजन कर रही हूँ इसको लेकर। एक पिताजी थे, उन्होंने अपने दोनों बच्चों को लास्ट समय में बुलाया और बोला, बेटा मेरे पास आप दोनों को देने के लिए एक चीज है। तो बच्चों ने बोला, अरे पिताजी आपने पूरी जिंदगी हमको दी, अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आप ऐसा मत कीजिए। बोले नहीं, ये एक आम बचा है, इसको आप दोनों मिल बांट के खाना, ये मैं आपको देके जा रहा हूँ। बोले ठीक है। बड़े भाई ने जैसे ही पिताजी की अंतिम क्रियाएं हो गई, सब कुछ हो गया, तो उन्होंने वो आम देखा तो उनको समझ में आया, अरे पिताजी ने दिया था, क्या करना है इसको। तो बड़े भाई ने बोला, मैं बड़ा हूँ, पहले मेरा हक है, मैं इसको खाऊंगा। बोले ठीक है भैया, खा लो। तो बड़े भैया ने पूरा फल लिया और खा लिया, और छोटे भैया को उसको सिर्फ गुठली दे दी। स्टोरी जैसी आपने सुन ली, आपको समझ में आ गया होगा कि ये पार्ट किसके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, छोटे भाई के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें सेविंग प्रोसेस या फ्यूचर प्रोसेस के ऊपर गया। उसने गुठली को जमीन में गाड़ा, एक पौधा बन गया, पौधा धीरे धीरे बड़ा हुआ, एक नहीं हजारों आम आने लगे, इससे उसकी दिनचर्या भी चलने लगी, जीवन भी चलने लगा, और एक अच्छा वे ऑफ उसने प्रोसेस लिया। मतलब हमें एक चीज को लेकर कैसे अपने फ्यूचर को सेव करना है, ये सिखाता है योग। और आज की जनरेशन में सभी को योग के बारे में पता है, तो आई थिंक मैं अपने आप को क्लियर कर पाई हूँ कि योग हम सबके लिए कितना और क्यों जरूरी। थैंक यू वेरी मच। स्वाति मैम, कैरी ऑन। Thank you, madam. All informations are very valuable. I request all the participants, if they have any query, they can ask freely or they can put the question in the chat box. Okay, I have one question, madam. क्या जननीति सभी एज ग्रुप पीपल के लिए सुटेबल है? बच्चे भी ये कर सकते हैं क्या मैम? जी मैम, 6 years onwards और यहाँ 60+, 70+, 80+, आप कोई भी जलनेती कर सकता है। कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो, चाहे आपको साइनस हो, माइग्रेन हो, सभी लोग जलनेती कर सकते हैं। एक बार यदि आपको प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख लीजिए, किसी का सामने आके कर लीजिए, लेकिन आप हर कोई इसको कर सकता है, एनीबॉडी। Any questions from participants? Okay, no questions, ma'am. So Okay, ma'am. Thank you, ma'am. okay, now it's time to sum up. I would like to conclude this session, ma'am. Okay, ma'am. Khushbu madam and Jyoti madam has shared wonderful time with us. Madam has beautifully explained and demonstrated about yogasanas. Madam has started her session with basic knowledge of yoga, and she also focused on the role and benefits of yoga during the pandemic situation. Also, Madam emphasized on the 8 steps of Ashtanga yogas and explained importance of yoga to bring the harmony mind body to improve your health and relaxations of mind. Khushbu and Jyoti madam has beautifully conducted practice sessions and given very good examples of the primary stages of asanas, tadasanas, vajrasanas and many more, and also explained their benefits. Madam also emphasized on the role and importance of the Jal Niti.
All the informations are very valuable, madam. And thank you so much, madam, for your valuable guidance about the yoga. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Please accept Shall I our. leave? Shall I leave? No, yeah. Just wait 1 minute. Just Madam. wait, ma'am. Just wait, madam. Okay, okay, ma'am. Okay, sir. Swati, madam. Please accept our token of appreciation, ma'am. Thank you, Madam thank Jyoti, you, ma'am. thank you, By ma'am. virtual mode. Thank you, ma'am. Yeah, Thank thank you so much, you. ma'am. Kindly you. accept the certificate also. Yes. Yeah. Surely, sir. Thank you very much. Hemant sir, thank you very much. Thank you so much. Thank you. Dhanyavad. Khushbu ma'am and Jyoti ma'am. Okay. Thank you. Thank you, everyone. So now I am giving the bio break. If anyone is having